All right, ladies, a very, very good afternoon to all of you. I hope you guys are doing good. And can I please have your videos on for most of you जिनके लिए practically possible है. Great. I can see some lovely faces across the screen. So welcome to your Talent Round 2 training session, your first training session for Talent Round 2. You guys have performed brilliantly in your Talent Round 1, and now there is no looking back. I'm sure you have realized that there is nothing that you cannot do. So moving forward, we have a makeup artist on board today, an expert from that field who will be talking about the basics and the concretes of makeup, and everything else. About the Talent Round 2 details, I will be giving them out in the end of the session. So make sure you stay back because I will be sharing out some details and the information. And of course, clarifying your questions. Please make sure that you pertain your questions to the trainer only related to her profile, which is makeup and skincare. So I guess we are good to go. Now, let me just invite Asmita Arya, our expert for the day. Hi, Asmita. Hi. So she is Asmita Arya, a certified makeup artist, our FCR trainer for the day, and I would like to welcome her. It's an absolute pleasure having you here today, Asmita, and I would request you to take over. First of all, thank you so much for having me. So today's session will be all about a very basic, subtle makeup look. So I'll be teaching you all the basic makeup techniques so that you guys can look beautiful in and out of your pageant. So yeah, today we'll learn a very natural looking base along with a very subtle eye makeup so that you can wear this look everyday kind of look. So yeah, let's just start. And before starting with makeup, I would first like to talk about skincare, which is equally important when we wear makeup. So before applying makeup, it is very important कि आप अपनी skin को prep करो अच्छे से, so that your makeup can stay for the longest time. So your skincare includes 3 steps, which is CTM. Most of you might be knowing this, which is cleansing, toning, and moisturizing. These are the 3 basic steps which should be included in your skincare as well, your morning routine or maybe your night skincare routine. But before applying makeup also, it's very important कि हम तीनों चीजें follow करें ताकि जो मेरा base है वो और अच्छा flawless आए और oxidize ना हो बहुत जल्दी. So yeah, मैं साथ I'll show you on myself. So first I'll start with cleansing. I have washed my face and I'm sitting barefaced. I've just applied a clear lip balm. It is also important ताकि आप जब लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई करो तो आपकी जो लिप्स है वो थोड़े हाइड्रेटेड रहे, चैप ना हो. So first I'm using cleansing wipes, which is a baby wipes. I prefer using baby wipes only. So I'll just make sure कि कोई भी अगर डस्ट है या फिर कुछ भी तो वो मैं पहले क्लीन कर लूं, या मे बी जो मेरा कोई रेसिड्यू हो मेकअप का. कई बार लोगों को काजल रह जाता है, मे बी लिप शेड. यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छे से सब क्लीन हो. लेट मी जस्ट पिन माय सेल्फ. या एंड मेक श्योर जो आप फेस पे कर रहे हो वो आप नेक पे भी करो, क्योंकि अल्टीमेट गोल है हम पूरा जब आप मेकअप करेंगे तो आपकी नेक अलग नहीं लगनी चाहिए आपके फेस से. So I am done with my cleansing. This is quick cleansing. आप deep cleansing होती है वो जो आप facials लेते हो, cleanups लेते हो, which is like once in a week or twice or thrice in a month. So that is deep cleansing. This I have done a quick one. So next step is toner. Now when you do cleansing, what happens is जो आपके pores होते हैं वो open हो जाते हैं. ठीक है, जब हम फेस वॉश यूज करते हैं, मे बी यूज अ स्क्रब, तो उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं जो हमारे पोर्स को थोड़ा ओपन कर देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको क्लोज कर दें साथ साथ, ताकि उनमें डस्ट ना जाए. मे बी जो हम मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, वो ना जाए. फॉर दैट वी यूज अ टोनर. नाउ दिस टोनर इज फ्रॉम अरोमा मैजिक. So I'll try to use all affordable brands since you all are beginners. So I want you to experiment more with different brands. So this is from Aroma Magic, and always buy skincare according to your skin type. Now we have different skin types like dry, normal, oily, combination. I'm a combination skin type. There are some who have sensitive skins, acne prone skins. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्किन केयर जब भी लेते हो तो अपना स्किन टाइप देख के लो.
जैसे इसका मेरा है, दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन स्किन. So this toner is in spray form. Always try कि आप spray वाला लो, easy to apply होता है, आपको cotton में लेने की unnecessary need नहीं है. So अच्छे से I'll spray a generous quantity and make sure आप हर step में एक मिनट का gap ले रहे हो. एक साथ उनको layer up नहीं करना. Let them just penetrate into your skin. And I'll just pat it. Now I'm done with my toner. My next step will be M, which is moisturizer. Now there are also serums and facial oils you must have seen in market. So उनका क्या काम होता है, जो serums होते हैं, they are basically to treat your problems, like maybe you have pigmentation or you have wrinkles, और तो उनके अलग अलग serums आते हैं, जैसे vitamin C serum or maybe a tea tree and hyaluronic serums आते हैं ताकि hydration मिल सके extra. So there are different serums for different purposes that we use before moisturizer. But when it is a facial oil, it should be used after a moisturizer. Okay? So facial oil is basically for those who are having dry skin, normal to dry skin, जिनको लगता है कि हमारा makeup foundation लगाते हैं, थोड़ा patches आ जाते हैं, creases बनते हैं, so they can go for a facial oil, which can be mixed in your foundation, or you can apply after your moisturizer and before your foundation, basically. Okay, so I'm done with my toner now. And for serums, I would suggest L'Oreal के बहुत अच्छे हैं in affordable range, and Nykaa के भी अब आ गए हैं, काफी अच्छे हैं वो भी. और facial oil, there's a for those who are having dry skins, there's a facial oil from Calabar. It's called dry oil. So वो बहुत non-sticky सा है, and it's very good. Highly recommend. If you want, you can write down the products I'm suggesting. So now there's a thing in makeup that ये आप लिख सकते हो, जिन लोगों की स्किन नॉर्मल टू ड्राई होती है या फिर एक्सट्रीमली ड्राई, यू शुड ऑलवेज गो फॉर प्रोडक्ट्स विच आर क्रीम बेस्ड और ऑयल बेस्ड. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई भी चीज लो, बी इट योर फेस वॉश, क्लेंजर, अ फाउंडेशन में भी, तो आप ऐसा लो जो क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड हो, ताकि वो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखे. And on the other hand, when it comes to a combination or a oily skin person, तो वो हमेशा एक foam based, एक water based या फिर silicon based product ले, या फिर gel based. उससे क्या होगा कि आपकी skin को ज्यादा वो oily नहीं बनाएगा जो आप product use कर रहे हो. Now for oily, since I'm a combination skin, so I'll go for a gel based cream. This is from Pond's Super Light Gel Cream. Again, very affordable. So this is in gel form. So I'll just apply a generous quantity again. For dry skin people, I would suggest Cetaphil and Neutrogena. These are the two brands. They have very amazing, moisturizers, which are very hydrating. And also on my neck, whatever goes on my face goes on my neck. Okay, so yeah, I am done with prepping my skin. Now next step, which also comes in prepping, but it's a makeup product, which is a primer. ठीक है, तो प्राइमर का काम क्या है कि आपकी स्किन और आपके मेकअप के बीच में एक बैरियर क्रिएट करना. ठीक है, ताकि आपका जो मेकअप है वो एब्जॉर्ब ना हो स्किन के अंदर, और ऑल्सो इट विल क्रिएट स्मूथ फिनिश ऑन योर स्किन, ताकि एक स्मूथ लेयर बन सके जिसके ऊपर आप मेकअप लगाओ तो थोड़ा और अच्छा टिके. एंड इट ऑल्सो मेक्स योर मेकअप थोड़ा सा लिटिल लॉन्ग स्टे. वैसे तो हमारे फाउंडेशंस जो होते हैं वो ऑलरेडी लॉन्ग स्टे का पर्पस उनका होता है, बट स्टिल प्राइमर डज द डिफरेंस. So this is a primer which I'm going to use. This is from Calabar. ठीक है, I prefer this because first of all, this is silicon based, so it's good for my skin as a combination. Now combination skins are basically T-zone oily, basically around my nose or my chin area or my forehead, my hairline. This is very oily, but my cheeks are comparatively drier or normal. So I am a combination skin. So primer, जहां भी मुझे लगता है कि excess oil generate होता है, concentratingly वहां मैं लगाऊंगी. और आपके जैसे कि कई लोगों के ओपन पोर्स होते हैं, नेचुरली ही बहुत एनलार्ज होते हैं,
और मे बी वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं आपके नोज के अराउंड, मेरे तो बहुत ज्यादा है. सो आई प्रेफर यूजिंग अ प्राइमर. उससे क्या होता है, वो एक लेयर बन जाती है एंड इट इंश्योर्स कि आपके मेकअप में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो. और जिन लोगों को बहुत ही एक्सेस ऑयल का प्रॉब्लम है फेस पे, दे कैन अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस, but in a very minimum quantity. We don't want to layer it. Okay. So yeah, my primer is done. For people who are having very like बहुत ही ज़्यादा बड़े pores होते हैं जिनके बहुत large pores, तो they can go for a pore filling primer. ना pore filling primers क्या होता है, उनकी concentration जो होती है, जो silicon उसमें ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा, तो it helps, no, it dig into your skin. तो वो अच्छे से उनको लेयर कर देता है आपके pores को, उसमें अंदर इकट्ठा हो जाता है ताकि एक लेयर बन जाए बेसिकली. तो pore primer is good from PAC, PAC, again an affordable brand. So now we are done with prepping our face. So now I'll move on to correcting or concealing. Now correcting is done to neutralize your face problems, like maybe you are having like hyperpigmentation or very dark circles around your eyes, or maybe you are having acne, active acne, or maybe your acne scars. ठीक है, तो ये सब होते हैं जो हमें चीजें करेक्ट करनी होती हैं हम जब अपना मेकअप लगाते हैं. So for that we use a corrector or a concealer depending upon the intensity of a problem. So corrector is basically, ऊपर से बताऊं तो दो टाइप के करेक्टर होते हैं. वैसे तो इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है इन मेकअप की, क्यों हम ये कलर्स यूज करते हैं, तो इट्स अ होल कलर थ्योरी थिंग. बट अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो दो करेक्टर आपने देखे होंगे वेरी कॉमनली यूज्ड, व्हिच आर ऑरेंज एंड ग्रीन. ठीक है, सो फॉर योर ऑल योर ब्राउन प्रॉब्लम्स, बेसिकली योर अंडर आईज, लाइक आपके डार्क सर्कल्स और योर हाइपर पिगमेंटेशन और योर एक्ने स्कार्स, जो ब्राउन प्रॉब्लम्स है उनके लिए यू यूज अ ऑरेंज करेक्टर. ठीक है, आप ऑरेंज करते हो उनको पहले ताकि वो आपका न्यूट्रलाइज कर दे उनका इफेक्ट आपके फेस पे. When it comes to your red problems, which is your active acne, और maybe जिनकी sensitive skin होती है उनके patches पड़ जाते हैं face पे red, तो for that you use a green corrector. Simple. But since you can see अब मेरे face पे I have a little discoloration around under my eye area, a little here and a little bit on my upper lip. Okay, so I would avoid using a color corrector. I would use a concealer. ठीक है, अब जिनको प्रॉब्लम है वो पहले करेक्टिंग करें, अपना करेक्टर लगाएं, उसके बाद कंसीलर से उसको न्यूट्रलाइज कर दें. बट सिंस मेरे इतना मुझे नीड नहीं लग रही कि मेरा कोई बहुत हाइपर प्रॉब्लम हो, तो आई वुड डायरेक्टली गो टू माय कंसीलर. नाउ हाउ टू यूज अ कंसीलर. योर कंसीलर शुड बी 2 to 3 shades, maximum 3, minimum 2 shades darker than your foundation. So your foundation should be exactly your skin tone, not light, not dark, and your concealer should be, which is used to color correct your problem, so that should be 2 to 3 shades darker. So this I have from LA Pro Girl and one I have from Maybelline. Now again when it comes to a concealer or foundation, in सबकी ना consistency होती है. कई होते हैं बहुत less coverage, कई होते हैं बहुत medium, कई होते हैं बहुत high coverage. ठीक है, so again जैसे आपकी problem है उस according आप purchase कर सकते हो. In high coverage, highly recommend this Maybelline. This is age rewind, instant age rewind concealer. इसकी बहुत high coverage है, आप बहुत easily कुछ भी इससे hide कर सकते हो. And this is a LA Pro Girl one. This is a brand LA Pro Girl. तो ये medium, light to medium coverage है, which can be buildable. कि आप थोड़ा सा लगाया फिर थोड़ा और लगा सकते हो. लेकिन अगर जो ये high coverage होते हैं, इनको आप एक ही बार लगाओ फिर need ही नहीं होती. ये इतना high coverage दे देते हैं आपको उसको. So I'll go for this since we are doing a very natural, subtle makeup. So I'll use this. जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे need है conceal करने की अपना. So yeah, these are the areas I feel थोड़ा सा मेरा discoloration है face पे, तो वहां मैंने लगाया. And I'll use a second. I'm using a concealer brush to blend it.
feel like थोड़ा छोटा है ये ब्रश. I'll go for bigger brush क्योंकि एरिया ज्यादा है. ऐसे ब्रशेस जो होते हैं वो अपनी आई अंडर आई पे आप प्रेफर कर सकते हो ताकि जो छोटी एरियाज हैं उन पे अच्छे से ब्लेंड हो पाए. एंड व्हाई आई एम नॉट यूजिंग अ ब्लेंडर, रीजन बीइंग क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर को डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगाते हैं ना तो वो इंस्टेंटली वो प्रोडक्ट अब्सॉर्ब कर लेता है जो ऊपर लगा हुआ है. तो व्हाट आई प्रेफर इज कि पहले मैं अपनी फिंगर से या फिर अपने ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूं. फिंगर इज इक्वली गुड क्योंकि आपकी फिंगर्स में वार्मथ होती है तो वो अच्छे से प्रोडक्ट को मेल्ट करके स्किन के अंदर ब्लेंड कर देती है. एंड डिड यू ऑब्जर्व कि मैं अपना प्रोडक्ट एक टैपिंग मोशन में चला रही हूँ. आई एम जस्ट डैबिंग इट, आई एम नॉट स्लाइडिंग इट और रबिंग इट ऑन माई फेस. आई विल जस्ट डैब इट बिकॉज आई डोंट वांट कि क्रीजेस बने, लाइंस बने. आई जस्ट वांट कि वो वहीं का वहीं एक कवरेज दे मुझे, लाइक दिस. एंड दिस इज वेरी लाइट वेट, बहुत ही लाइट कवरेज वाला है. तो आई रियली लाइक इट कि मैं जितना भी लगाऊं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा फेस केक ही लग रहा है. But those who are having like थोड़ा ज्यादा discoloration, hyperpigmentation problem, so they can go for high coverage. So yeah, I am just done with my blending with my concealer. So this is a brush. अब कभी भी आप कोई बेस प्रोडक्ट, कोई भी क्रीम प्रोडक्ट ब्लेंड करने का ब्रश लेते हो ना तो मेक श्योर उसके जो ब्रिसल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, मतलब बहुत स्टिफ होते हैं. यू कैन जस्ट चेक कि वो खुले नहीं हुए. कंपैरेटिवली अगर मैं कोई पाउडर के लिए ब्रश लूं तो उसके देखो कितने इजीली मूव हो रहे हैं. सो दिस इज द थिंग कि जब आप ब्रशेस लेते हो तो कोई भी पाउडर प्रोडक्ट के लिए आप ऐसा ब्रश लोगे और कोई भी क्रीम के लिए आप ऐसा ब्रश लोगे. ठीक है. सो आई जस्ट मेक श्योर अच्छे से ब्लेंड हो गया है. और जितना अच्छा ब्लेंड करते हो उतना ही अच्छा आपका बेस आता है फिर. Okay, so next step is my foundation. So foundation should be exactly your skin tone. Now how you will judge it? Like I have this foundation. This is from Lakme 9 to 5. Again, light to medium coverage. Medium coverage, like अच्छी coverage दे देता है ये. Good for daily use. Highly recommend this. ठीक है. So you should always test your foundations here. Whenever you go to a store, तो कभी भी आप अपने हाथ पे बैक ऑफ योर हैंड कभी भी टेस्ट मत करो. ऑलवेज टेस्ट इट हियर. क्यों? क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, हमारी नेक को मैच करना. क्या होता है हमारी नेक थोड़ी लाइट होती है एज कम्पेयर टू आवर फेस क्योंकि फेस एक्सपोज्ड होता है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो ये फाउंडेशन का कलर है इट मैचेस विद आवर नेक एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स आवर फेस. ये नहीं कि फेस बहुत डार्क है और बहुत ही लाइट शेड उठा लिया मैंने. तो मैं यहाँ लगा के देखूंगी ना ब्लेंडेड. आई विल सी कि ठीक है, सीमलेस हो रहा है, कोई अलग नहीं दिख रहा मुझे, बहुत वाइट नहीं दिख रहा. So I'll just go with this shade and take it on my hand. Directly face पे मत लगाओ. लगाना तो ऐसे छोटे छोटे डॉट्स करके लगाओ एक जगह पे एंड उसको साथ साथ ब्लेंड कर लो. Again I'll use a foundation brush. इसके देखो कितने thickly packed है, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहे. So I'll just take it on my brush and start blending it again in tapping motion. और कभी भी हाई कवरेज अगर फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो मेक श्योर आप बहुत सारा ना लगाओ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लो एंड उसको बिल्ड करो. क्योंकि कम प्रोडक्ट को मैं ज्यादा कर सकती हूँ, बट ज्यादा लग जाए तो उसको कम करना फिर इम्पॉसिबल है. कितना भी ब्लेंड कर लो नहीं देता, फिर केक ही लगता है फिर आपका फेस उससे. तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन केयर कि अगर आपकी स्किन अच्छे से प्रेप्ड है तो इन टर्न ना आपको कम प्रोडक्ट ही यूज करना पड़ेगा. आपको नीड नहीं पड़ेगी कि आप बहुत लेयरिंग करो.
So yeah. So I have got a decent coverage. अब थोड़ा सा मुझे हैवी मेकअप करना होता ना तो शायद थोड़ा और बिल्ड करती इसको, बट फॉर नाउ आई नीड थोड़ा नेचुरल लुकिंग सा, सो आई गेस दिस इज फाइन. Now it is very important to lock your foundation using a compact or a loose powder. ठीक है? So compact is generally like this, जो एक बंद compact form में होता है, pressed powder basically. और loose powders are like this. ये powder होता है and like this is from MAC, but I would recommend affordable में Color Bar is a very good brand for compacts. ठीक है? So I'll use this to pack my base. And जिनको भी ऑयल का प्रॉब्लम है, स्वेट कंट्रोल चाहिए, तो ये आप अपने पास रखो हमेशा. कभी भी आप बाहर जा रहे हो मेकअप करके, इफ यू फील लाइक यू आर स्वेटिंग, तो जस्ट अप्लाई अ कॉम्पैक्ट. इंस्टेंटली वो आपका स्वेट रोक देगा. Just check mirror. So yeah, अब थोड़ा ये मैटिफाई कर देता है आपके फाउंडेशन को, क्योंकि फाउंडेशन से एक बड़ा ग्लॉसी सा लुक आता है. इफ यू वांट तो अगर आपको ग्लॉसीनेस चाहिए तो यूज अ हाइलाइटर बाद में, और मे बी यू कैन यूज अ लाइटर कंसीलर. ठीक है, so now I'm done with my foundation. Now I'll switch on to contouring, blusher and highlight. So basically contouring हम क्यों करते हैं? अब आप ने देखा है मेरा फेस, आई हैव अ लिटिल चबी फेस. ठीक है, सो अब मुझे थोड़ा होता है कि थोड़ा सा मेरा स्लिम दिखे फेस, एक इल्यूजन क्रिएट करता है. बेसिकली आपका फेस स्कल्प्ट दिखाता है, आपका फेस स्लिम दिखाता है, स्कल्प्टेड, यू नो. सो दिस इज अ कॉन्टोर. ठीक है, I'll just take it, ऐसे फ्लैट ब्रश पे हम लेते हैं, and I'll show you from your ear top towards your lip. This is the area like this. ठीक है, ये एरिया है जहां हम अपना कॉन्टोर करते हैं. इससे क्या होता है, it just cuts your fat immediately. ठीक है, जहां पे भी मतलब एक्चुअली भी नहीं करता, बट इट क्रिएट्स an illusion, especially on screens, on videos, pictures. तो इंस्टेंटली ना आपका एक आपका जैसे चीक फैट है तो उसको कट कर दिया. इफ यू हैव अ बिगर फोरहेड तो उसको छोटा दिखा सकता है. और इफ यू हैव अ जॉ लाइन जो थोड़ी चबी है एंड यू वांट टू कट योर फैट, तो अगेन यहाँ लगाओगे and just blend it downwards. It will instantly give you, sharp jawline effect like this. I'll do the same on the other side. वहीं लगा रही हूँ जहां मुझे लगता है कि मुझे अपना फैट कट करना है, बेसिकली ऑन माय चीक्स और माय जॉ लाइन. एंड अगर मुझे लगता है कि मुझको नोज को शार्प दिखाना है, तो दोनों साइड से आई क्रिएट अ पैरेलल लाइन लाइक दिस. जो आपकी नोज का टॉप होता है ना, वो जितना स्लिम दिखेगा उतनी पतली आपकी नोज दिखेगी. हमारा पर्पस क्या है कि दोनों साइड से उसको छोटा दिखाएं, और लाइक दिस. अब जिनका फॉरहेड बड़ा होता है, मतलब फेस लंबा होता है, तो हम यहाँ और यहाँ कॉन्टोर करते हैं ताकि फेस छोटा दिखे. अब मेरा फेस ब्रॉड था तो मैंने साइड्स पे कॉन्टोर करा ताकि मेरा फेस स्लिम दिखे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट इज ब्लश. अब मैं जिस स्टेप में कर रही हूँ ना, हमेशा इस स्टेप में ही करना चाहिए मेकअप. पहले हमने कॉन्टोर बनाया, नाउ वी गॉट द एरिया फॉर आवर ब्लशर. अब हमारा ब्लशर कॉन्टोर से नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर ही रहना चाहिए. सो दिस इज द ब्लशर. Now, I would recommend ये जो कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर आता है ना, शुगर इज अ ब्रांड. ठीक है, इसकी पूरी किट आती है, उसमें 3 चीजें होती हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट. नाउ योर ब्लशर शुड बी हियर जस्ट अबव योर कॉन्टोर, उसके साथ मर्ज होता हुआ लाइक दिस. ठीक है, और आपका ब्लशर ना हमेशा ज्यादा लगाओ, क्योंकि बाय द टाइम इट विल फेड अवे. कभी भी आप नोटिस करोगे जो ब्लशर्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद, जैसे अगर हम रेडी हुए हैं और 1 घंटे बाद, इट विल फेड अवे.
So it's better कि आप थोड़ा ज़्यादा लगाओ. Now next step is to highlight. Right now I'm not having a makeup fixer, but what I do is makeup fixers आते हैं market में. अब उनका क्या काम होता है? Not to make your makeup long stay. It's already long stay. उनका काम ये है कि हम जो इतना पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करे हैं उनको एब्जॉर्ब करना स्किन में. बेसिकली जो पाउडर है वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर. ठीक है, तो मैं क्या करती, मैं पहले मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाती, उसके बाद अपना हाइलाइटर अप्लाई करती. उससे क्या होता है, हाइलाइटर स्टिक कर जाता है मेरे और अच्छे से. बट ठीक है, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल. So this is a highlighter again from Sugar. So this is my favorite step. No, it instantly gives you see a reflection. आप लाइट में जाओगे, आपका फेस टर्न कर रहा है, तो जितनी भी आपके हाई पॉइंट्स है आप वहां पे हाइलाइटर लगाओ, which is your cheekbones, your bridge of the nose, cupid's bow, your chin and your forehead. ठीक है, अब आप देख रहे हो मैं मूव कर रही हूँ and it's giving a reflection on my face. So it looks very good in pictures as well. Now we are done with our base. Just a second. Yeah, so we are done with our base. And now I'll quickly move on to eyes. For that, I'll do my brows first. So brows are done using maybe a brow pencil or maybe an eyeshadow, which is dark brown in color. Never use a black eyebrow pencil. Never. Even if you have black hair. अब मेरे तो बिल्कुल jet black है बाल. But I'll never go for black because उससे बहुत dramatic eyeshadow लगती है, बनी हुई लगती है. कभी भी किसी की natural brows ना इतनी ज़्यादा dark black नहीं होती हैं. और आपका अगर हेयर का कलर ब्लैक है तो गो फॉर डार्क ब्राउन लाइक दिस, थोड़ा ऐश सा कलर. दिस इज अगेन फ्रॉम शुगर. शुगर की बहुत अच्छी है, लैक्मे की भी बहुत अच्छी है पेंसिल. आई प्रेफर इन रिवॉल्विंग ताकि बार बार शार्प करने की नीड ना पड़े. एंड आई स्टार्ट स्ट्रोक्स बनाना जहां पे मुझे लगता है कि मेरे हेयर कम है. मेरे देख रहे हो नीचे हेयर ज्यादा है बट ऊपर आई हैव लेस हेयर. सो आई जस्ट स्टार्ट फिलिंग इन स्ट्रोकिंग मोशन. कभी मैं इसको पेंसिल की तरह ड्रॉ नहीं करूंगी because I don't want to बनी हुई लगे. And the other side you have a spoolie. This is called a spoolie. इसका एक ब्रश भी आता है अगर किसी आईब्रो पेंसिल में नहीं है तो दिस इज कॉल्ड spoolie. इसका पर्पस क्या है कि आपके हेयर को एक तो डिफाइन शेप में लाना और दूसरा कि कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट लग गया है तो वो उसको साथ साथ ही डस्ट ऑफ कर देता है. लाइक दिस. नाउ आई डू सेम ऑन द अदर आई. अभी मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई सो इतना मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा. बट ट्रस्ट मी, जब आप ब्राउज बनाते हो ना तो आपका फेस का शेप भी चेंज हो जाता है एकदम से सडनली. जहां जहां भी मुझे लगता है कि मेरे हेयर कम है आई एम जस्ट अप्लाई लाइक दिस एंड आई मूव माय हेयर अप लाइक दिस. मुझे थोड़ी बुशी ब्राउज पसंद है, बाकी अप टू योर चॉइस, जैसी आपको पसंद है बनाओ वैसी. एंड ऑलवेज मेक श्योर योर आर्च इज देयर. लाइक ये जो हाई पॉइंट आपका आर्च होता है it should always be above your eye end. This is the ideal place to have an arch. कभी आपकी ब्यूटिशियन भी आती है तो आप जब आईब्रो बनवाते हो तो उसको बोलो कि मेरा आर्च यहाँ होना चाहिए. इससे मतलब दिस इज आइडियल पोजिशन फॉर योर फेस कि आपका आर्च यहाँ पे हो. ठीक है, नेक्स्ट इज आई मेकअप. Now for my eyes, I'll first create a base for my eyes using again a concealer. You can use any concealer. पहले वाला भी कर सकती थी. ये थोड़ा सा लाइट कलर है ताकि मेरे जो कलर्स हैं वो अच्छे से पॉप हों और स्टे करें. कई बार क्या होता है हम आई शेडो अप्लाई करते हैं एंड इट फेड्स अवे. हम लगा रहे हैं और उसको कलर नहीं आता. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे यू नो बेस क्रिएट करो अपने शेडो के लिए ताकि उसके कलर्स और पॉप करें और वो स्टे करें वहां पे. अब देखो मेरी क्रीजेस थोड़ी सटल हो गई हैं. I'll just quickly take my compact. Again, it's a cream product. I need to set it with a powder product. So I'll just take my compact and set it.
ठीक है, मेकअप में इकलौता रूल यही है कि कोई भी क्रीम प्रोडक्ट है, ऑलवेज ऑलवेज नो पैक इट विद द पाउडर प्रोडक्ट, otherwise it will move by the time. Now I'll do my eye makeup. So I'm doing a very subtle basic, like I'll do a peachy or a brown eye. I'll show you how. For that I just need two colors. अब जब भी हम eye makeup करते हैं ना, we need two colors. Basically a main color जो हम अपनी eyelid पे रखेंगे और उसको blend करने के लिए उससे एक lighter shade, ठीक है. तो जैसे अगर suppose मैं ये color उठाती हूँ, ठीक है, so उसके लिए I might use this color or this color to blend it, ठीक है. हमें harsh line दिखनी चाहिए अपने eye के ऊपर. Suppose मैं ये color लेती हूँ तो I'll use this color, or maybe if I use this dark pink I'll go for this to blend it out on my eye. I'll show you how. So first of all, I'm taking a flat brush. I'll just quickly clean it first. Okay, so I am going for this shade. I'm going, okay, upper peach wala. First, I'll just apply this on my lid. Okay, I'll just see in the mirror. First, I'm going to apply it on my lid area. Now, what is a lid area? Basically, when you open your eye and you see a crease line here. So this is उसके नीचे आपका वो है lid area and this is your crease and इसके ऊपर आपका जो है आई शैडो वो blend होके ही आना चाहिए. So first I'm just applying the shadow, not blending it. Simple application on my lid. ठीक है, अब आप देख रहे हैं बहुत ही डिफाइन सी लाइन बन रही है. So इसको हमने blend करना है using a lighter shade. I'll use this shade. And blending हमने कहाँ करनी है? उसके edges पे जहां वो खत्म हो रहा है. And blending के लिए I'm using a fluffy brush. उसके लिए मैंने flat brush use किया था application के लिए. So like this I'm going to blend my harsh lines. अब आप देख रहे हो एक smoke create हो रहा है और ऊपर मेरा सिर्फ smoke जा रहा है. I don't want कि मेरा dark color ऊपर जाए. अब ऐसे ही आप ब्लैक के साथ कर सकते हो. ब्लैक लगाया, उसको ब्राउन से ब्लेंड कर दिया. It will create a smoky eye. Similarly on the other eye I'll do the same. I'll just roughly apply it on my lids. Make sure कि even है. And then you have to check also कि आपकी दोनों की जगह की intensity same होनी चाहिए eye shadow की. Now taking the lighter shade, I'm going to blend the edges. This is a very basic shadow कि आपको everyday में कुछ भी लगाना है. So taking any lighter colors, थोड़ा सा ये मैंने vibrant सा color लिया है, थोड़ा bright color है. You can go for और subtle colors. ठीक है, like this. आप देख रहे हो there is no harsh line now. It's very seamless and blended. Now there's also area on your eye जहाँ पे आपको highlighter लगाना होता है. So taking a small brush, I'll apply it on my brow bone. This is the area to apply a highlighter. And my inner eye here. ठीक है, this is the area. Now liner application is optional. अगर आपको लगता है कि आपकी eyes बड़ी हैं, go for a wing liner. And if you think कि आपकी eyes hooded है, कई लोगों की ऐसा hood होता है eye के ऊपर, which is like this. eye के ऊपर जगह ही नहीं होती apply करने की. तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप wing liner ही लगाओ.
वेयर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स योर आई. तो जिनकी हुडेड आईज होती है ना, ऑलवेज गो फॉर अ वेरी थिन लाइनर, ताकि आपका आई शैडो दिखे, या फिर अपनी आईज आप ओपन कर रहे हो तो लगे कि ऊपर आई में स्पेस है. ठीक है. सिंस आई हैव pretty much big eyes, I have like big area on my eye, I can go for either. और जिनकी आईज हुडेड होती हैं, वन मोर टिप, ऑलवेज अप्लाई लाइटर शैडो ऑन योर लिड्स. ठीक है. आप अपना ऊपर ब्लेंड कर सकते हो किसी भी कलर से, बट व्हेन यू अप्लाई अ लाइटर लाइक अ शिमर शेड मे बी ऑन योर लिड्स, it will give an illusion of a bigger eye. ठीक है ना. I am just applying a very thin liner, following my lash line. My liner is from Sugar again. You can go for Lakme Absolute. Forever 52 का भी अच्छा है. और जिनको लगता है कि we are not good in hand with liners, तो you can go for marker pens. अब देख रहे हो मैं बहुत ही थिन लगा रही हूँ, इससे ना सिर्फ मेरी एक डेफिनेशन आ रही है आई पे. ठीक है. चाहे वो इतना विजिबल नहीं है, बट आई कैन सी एक डेफिनेशन आ रही है मेरी आई पे. इट इज लुकिंग लाइक मोर ओपन नाउ. Now if I want, I can create a wing थोड़ा मोटा करके, but I guess for today I'll just want it to be very subtle. Now I'll move on to mascara. It should be a last step before your lip shade, क्योंकि जितना भी आपका पाउडर है वो आपकी लैशेस पे गिरा होगा. यू हैव टू मेक श्योर कि वो अच्छे से आप उसको रिमूव कर दो. एंड दिस मस्कारा इज फ्रॉम Maybelline Lash Sensational. लॉरियल का आता है, बहुत अच्छा है वो. Forever 52 का बहुत अच्छा है मस्कारा. बाकी और ब्रांड्स का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता. So I would just recommend these. Just take a mirror. And now always apply in ऐसे zigzag motion. You don't have to just curl it. ऐसे bruise it on your lashes ताकि रूट से वो कर्ल आ सके आपकी आईज पे. Like this. I don't know if it's visible, but in real, it just makes a difference. एंड कभी भी मस्कारा लगाते हुए इट हैपेंस कि आपका कहीं ना कहीं लग गया, हल्का बहुत कभी लग जाता है. सो नेवर रिमूव इट उसी टाइम. ठीक है. लेट इट ड्राई फॉर 5 minutes. एंड जब आप बाद में रिमूव करोगे तो वो इंस्टेंटली पाउडर की तरह हट जाएगा. लेकिन उसी टाइम अगर आपने हटा दिया तो वो स्टेन छोड़ सकता है. So yeah, done with the eye makeup. For lipstick, generally, अब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो अपने क्लाइंट्स पे आई प्रेफर यूजिंग अ लिक्विड मैट लिपस्टिक क्योंकि इट स्टेज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. ठीक है. टुडे आई एम गोइंग टू यूज अ बुलेट लिपस्टिक. दिस इज फ्रॉम नायका. सो नथिंग. इसमें कई लोगों को पसंद है तो वो लिप लाइनर से लाइन कर सकते हैं. अगर आपको अपनी बुलेट लिपस्टिक्स लॉन्ग स्टे नहीं होती, so what you can do is you can use a lip liner on your lips first. Fill it, no, lip liner से आप fill कर लो अपने lips को and then apply a lipstick. तो वो it will stay. I generally don't prefer. And just make sure कि आपके जो lips है ना, it should be equal. Your lower lip and upper lip. आजकल वैसे नहीं चलते कि आपके थिन लिप, ऊपर वाला थिन लिप है, नीचे वाला बहुत मोटा है. दैट डजंट लुक नाइस. तो ऑलवेज एक्सटेंड योर लिप्स इफ यू फील लाइक आपका नेचुरल लिप शेप छोटा या बड़ा है. तो जब भी एक्सटेंड करते हैं ना तो इतने पोर्शन में एक्सटेंड करते हैं. कॉर्नर से कभी भी एक्सटेंड मत करो, तो वो ड्रामेटिक लगता है. अगर मुझे थोड़ा प्लम्पी दिखाना है अपने लिप्स को, just do this. I'll just fill my, tip. Like this. इससे थोड़े प्लम्ड लगते हैं लिप्स, nothing else.
So yeah. So this is the complete look. And lipsticks, अगर आपको लगता है कि और आपको थोड़ा लॉन्ग स्टे करना है तो you can blot your lips. Blotting is again a technique. आप अपना टिश्यू पेपर लेके, ठीक है, टिश्यू पेपर को अपने लिप्स पे रखो और मे बी एनी पार्ट ऑफ योर फेस. अगर आपको लगता है कि थोड़ा और लॉन्ग स्टे मैटिफाई करना है तो टिश्यू पेपर लेके उसको रखा एंड उसके ऊपर अपना कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगा लिया टिश्यू पेपर के ऊपर. तो उससे क्या होगा, वो आपका और ब्लॉट मतलब थोड़ा और लॉन्ग स्टे बना देगा, स्वेट नहीं आएगा जल्दी बहुत. So yeah, that's it. This is the whole look. Now, if you have any questions, if you want any suggestions for yourself, you can ask, unmute yourself and ask one by one. इसको कोई डाउट नहीं, सबको सब कुछ आ गया? Great. I think Raksha has a question. Please, Raksha, go on. Yes. Ma'am, eyeshadow brand for smoky eyes. Okay, sorry, I forgot. Eyeshadow brand ना, see what happens, जो हम brands देखते हैं ना मार्केट में, जो जनरल हमारे ड्रग स्टोर ब्रांड्स है, बेसिकली बजट फ्रेंडली, दो कलरबा, लैक्मे, मेबलिन, ये सब. तो इनकी क्या होता है, आई शेडो पैलेट्स में ना बहुत अच्छी रेंज नहीं आती. यू डोंट फाइंड गुड कलर रेंज, बहुत सारे कलर्स नहीं होते. सो व्हाट यू गो लाइक, आप फिर इम्पोर्टेड पैलेट्स पे जाते हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है उनका फिर पिगमेंटेशन इतना नहीं अच्छा होता. आप लगाते हो उनके कलर, आप ब्लेंड करोगे, दिल फेड अवे, ठीक है. तो आई जस्ट सजेस्ट यू 2 brands, maybe 3, like Eye Magic, ठीक है, Beauty Glazed, Eye Magic और even Forever 52. इन तीनों की ना काफी अच्छी शेड रेंज आती है आई शैडो की एंड विद गुड पिगमेंटेशन. Eye Magic and Beauty Glazed are not brands, they are imported only, but they have good pigmentation. Thank you, ma'am. Welcome. Okay, I think Preeti has a question. Yes, Preeti, she's written in the chat box. Asmita, if you could read it. Yeah. Yeah, sure. Eyes के front में. Okay, eyes के front ये वाला corner पे if you're asking, so यहाँ पे yes. एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, आप ग्लिटर लगाओ, आप लाइनर लगाओगे तो प्रेफर करो आप लिक्विड लाइनर ही लगाओ, डोंट वेयर काजल, क्योंकि अल्टीमेटली आपके आई पे यहाँ पानी आता है, ठीक है, दैट इज नेचुरल, तो यू कैन कंट्रोल इट. इवन ऑन योर साइड्स, इधर भी आप जो है, आई ऑलवेज अवॉइड यूजिंग काजल ऑन माई साइड्स, बेसिकली दिस एरिया मैं बहुत ज्यादा फिल नहीं करती वहां पे, क्योंकि अल्टीमेटली ना वो फिर पानी के साथ मिक्स होके वो फेड होगा ही, ठीक है. तो काजल अवॉइड करो, गो फॉर लाइनर्स विच आर वाटर प्रूफ. एंड शिमर लगा सकते हो, ग्लिटर लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लुक्स गुड इन योर इनर आई. Excuse me, ma'am. Hi, ma'am. I have a question. Hi. Ma'am, like whenever we apply foundation, there leaves some kind of a dark spot on our face. Like whenever I'll apply the foundation, whenever I'll just touch my face, it just spot a kind of a dark spot on my face. So what's the remedy? Foundation? MAC foundation. Do you use Yeah. compact after? No, I only use a concealer and that foundation one. Nothing else. Yeah, so that is the thing I told you. What happens is, the rule in makeup is, this is cream to cream, powder to powder. So what happens is, when you use a cream product, be it anything, be it your blusher or your concealer or your foundation, always make sure to lock it with a powder product. So basically आप कंसीलर और फाउंडेशन को अपने कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से आप लॉक करते हो, विच इज इंपॉर्टेंट. नहीं तो क्या होगा, मैं अपना हाथ लगाऊंगी और वो स्लाइड ऑफ हो जाएगा, ठीक है. तो इट्स इंपॉर्टेंट आप कॉम्पैक्ट यूज करो, देन ये नहीं होगा फिर ये चीज.